ओके, अब इसका ये किधर गया? Okay, so am I audible properly? Am I audible properly, everyone? Yes, sir. Okay. So in the last class, we see how to solve equilibrium question. Now, first, very, very important question. See, suppose this is a string, or you can say wall, from which this is a string, and here, suppose a monkey is there, okay, and the monkey, this is the monkey, okay. Weight of the monkey is, suppose mass of the monkey is 10 kg, okay. Now you have to tell me, okay, find tension in each case. Yes. Question number 1, when the monkey is at number 1 rest, number 2 moving with velocity 5 meters per second upward, number 3 moving with velocity 5 meters per second downward, number 4 moving with acceleration 5 meters per second square upward, number 5 moving with an acceleration 5 meters per second square downward. Clear, everyone? Is it okay, everyone? Yes, sir. Yes, sir. So in each case, find the tension on the string. So for this question, I'm first stopping the recording. देखो ये, this is a very easy question and very interesting question. First of all, whenever you have this type of situation, you have to remember one thing, कि if a system is at rest or moving with constant velocity, if a system is at rest, if a system is at rest or moving with constant velocity, then the system is called inertial frame of reference. The system is called inertial frame of reference, and in that case, either in that case tension is weight, or you can say normal reaction is the weight. Means if it is on a system and or if it is in a weight machine, the normal reaction is mg, or sometime tension, because here like in this question it is the tension. Is it clear, everyone? Is it Yes, okay? sir. Yes, sir. Yes. Now if a system moving with some acceleration, okay, then the system is called non-inertial frame
ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अच्छा, नॉट नेसेसरी सिस्टम, कोई ऑब्जेक्ट भी अगर जा रहा है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि जिधर जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन फोर्स इज हायर, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन हाई फोर्स, हायर फोर्स। इतना कुछ लिखने का मन नहीं करता है, फिर भी लिख दिया थोड़ा। सो नाउ इफ आई सी वन बाय वन, if I see one by one, so see this one, so I can easily say from first one, second one, third one, if a system is at rest or moving with constant velocity, so first one rest, second one constant velocity, third one constant velocity. If a system is at rest or someone on the system or something is at rest moving with constant velocity, so then tension is weight or normal reaction is weight, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So I can easily say tension is equals to weight. Kab? For rest, moving with constant velocity, moving with velocity, constant velocity upward or constant velocity downward, yes or no? Yes, sir. Everyone satisfied? Yes, sir. Now in fourth and fifth case, see the monkey moving with some acceleration, and once the monkey moving with some acceleration in the opposite direction, means in the direction the monkey is moving, that one is the higher force, yes or no? Yes, sir. or no? So on that basis, if we want to write the equation, now see what happened. Now see what happened. If I draw it again, if we draw it again, this is my string, this is my monkey. Now the monkey is moving, first question mein tha 5 meter per second square upward, tension is upward, mg matlab kitna tha, what is the mass of the monkey? 10 kg na. So in the first three question, question number 1, question number 2, question number 3, my tension is 10 into 10, that is 100 Newton, yes or no? Yes, sir. And now here tension is upward and 10g is downward. Now tell me, as the tension is upward, 10g is downward, the monkey is moving upward, so which force is higher, T or mg? Upward force. So what is my equation then? Upward Five. force minus downward force into equals to mass into acceleration, yes? Throughout we can write this one. Yes. So what is my equation, tell me? Varshali, ball. So 10 into 5. 10 cano. T is the higher force than weight, na? Yes. Ball. कुछ तो बोलो. Are this force is higher than this force. The monkey is moving upward, so this force is higher than this force, and the mass of the block is moving outward. What is your equation? You can't able to write this. Last दिन ही तो किया. Anyone please tell me. David बोलो. सर हम ट्राई करें. हाँ बोलो ना. सर T minus 10 is equals to m into 5. M कितना है? 10 kg. तो क्या होगा? T minus 10g
अरे तुम लोग जो है ना, मतलब क्या बोले, रट्टा मार मार के ऐसा हालत हो गया है ना. T is the tension minus 10g. Why we write 10g? Acceleration due to gravity. अरे what do you mean by that 10 here? सर ये 10 क्या है रे बाबा, ये 10 क्या है? हाँ? एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सीलरेशन बुद्धू, तो ये क्या है? कौन सा ये क्या है? ग्राफ ना ग्रेविटी ये ग्रेविटी क्या? ग्रेविटी का मतलब क्या है? क्या ग्रेविटी? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना. हाँ सर तो ये क्या है? गधा गधा तुम लोग है. mg ये क्या है? Mass. मास Mass. Gravity. क्या है? Acceleration due to gravity. ये क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये क्या है? Mass. कितना मास है? 10 kg. तो तुम लोग को बोल रहा है 10g. ये क्या है? ग्रेविटी. ये क्या है? ग्रेविटी. ये क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये क्या है? ग्रेविटी. तुम लोग सब पागल है. अंडरस्टैंड? यस और नो? यस सर. यहाँ पे मैंने लिखा 10g. सो t माइनस 10g इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन कितना होगा? 10 into 5. हाँ तो बोलो ना 15. 10 into 5. If you write 10g, so 10 is your mass. Either you don't know that 10 is mass. Otherwise, if you know 10g, 10 is the mass, then next time why you say m? यहाँ पे m क्यों बोल रहे? You know the mass is 10 kg. तो यहाँ पे भी बोलो mg, यहाँ पे भी बोलो mg. एक बार बोल रहा है मास, एक बार बोल रहा है 10. तुम्हारा नाम क्या है? एक बार बोलो कि सक्षम. एक तुम्हारा नाम क्या है? स्टूडेंट. अरे तुम लोग ऐसा करके बात कर रहा है, इरिटेशन धरा देते हो एकदम. ओके एवरीवन. यस सर. सो व्हाट इज द टेंशन? 60 10 plus 10 into 5. So 10 into 10 plus 10 into 5. That is 150 Newton. Yes or no? Yes sir. Now in the next question, suppose same question, same string, same monkey, but now the monkey is moving downward. Yes. So this is my 10g, this is my tension T, this is my acceleration, that is 5 meter per second square given. Now among these two forces, which one is higher? Sir, 10g is higher. So what is your equation? So T Sir, plus 10g 10. minus 10 is equals to 10 10g into minus 5. D 10g minus t is equals to 10 10 into into 10 5. into 5 so T equals to 10g minus 50. That is 100 minus 50 50. equals to 50 Newton. Understand? Yes. Everyone understand? So whenever they ask you this type of question, ये 47 या 37 जो लिखा, the same question given in NCERT book also, but they are given in different manner. मैंने शायद recording को off करके रख दिया है ना? No, sir, on. No sir, it's on. Sir, it is on. So that means if the monkey, हमेशा दिमाग में रखना, not only monkey, anything, any object, if a object is at rest or moving with constant velocity, then the weight or weight is tension, weight is equals to tension or normal reaction, depends on if the object is on the system, depends on the situation. अगर रस्सी पकड़ा हुआ है तो रस्सी होगा, किसी वेट मशीन के ऊपर होगा तो वेट मशीन का होगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन होगा कोई. सो जो भी सिचुएशंस रहेगा उस हिसाब से, तो टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन इज सिंपल वेट इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. नाउ इफ द ऑब्जेक्ट इज एक्सीलरेटिंग, तो जिधर जाएगा उधर का वेट या टेंशन जो भी हो, जिधर जाएगा उधर का ज्यादा होगा. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में
फर्स्ट पार्ट में देखो, फर्स्ट पार्ट में ऊपर में गया है, सेकंड पार्ट में नीचे में गया है। तो फर्स्ट पार्ट में ऊपर में गया है तो t इज हायर, तो माय इक्वेशन इज जिधर जा रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिधर जा रहा है उधर वाला ज्यादा माइनस कम वाला डिफरेंस इज इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। जब नीचे गया तो देखो नीचे वाला ज्यादा, तो नीचे वाला माइनस ऊपर वाला मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Everyone understand that part? Yes. Yes, sir. So if you understand that part, next very very important part is pulley. ठीक है? So what is pulley? पुली में क्या होता है, एक डिस्क होता है, सर्कुलर डिस्क होता है, यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेल होता है which is fixed by some rod or something like this, और this is क्या होता है, एक इसके ऊपर एक रस्सी लपेटा होता है। In general what happened कि that disc also have some mass, but here in this chapter, which chapter? In this chapter means in Newton's law of motion, we neglect the mass of the pulley. So first priority is here, we neglect the mass of the pulley. Is it okay? Yes, sir. Yes. Now the second thing is that obviously ये पुली किसी सपोर्ट के साथ रहेगा और इसके साथ साथ ये पुली घूमेगा। इस पुली के साथ एक स्ट्रिंग होता है, लाइक दिस स्ट्रिंग इज कंटिन्यूअस स्ट्रिंग, मतलब इधर से जाके इधर से जाके इधर से आया है। ओके, दिस इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रिंग, दिस इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रिंग। एंड इस स्ट्रिंग का कुछ प्लस पॉइंट्स है, क्या क्या है? इनएक्सटेंसिबल लाइट। इनएक्सटेंसिबल मतलब इसको छोटा बड़ा तुम नहीं कर सकते हो, जैसे रबर वगैरह हो जाएगा तो रबर से क्या हो सकता है, रबर छोटा बड़ा हो सकता है ना? हाँ सर। तो ये छोटा बड़ा नहीं होगा। तो इनएक्सटेंसिबल, दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड लाइट, लाइट मतलब इसका भी हम मास नहीं लेंगे। और ये स्ट्रिंग जब तक ये कंटिन्यूअस स्ट्रिंग होगा, याद रखना, जब भी whenever we put some mass on the string, whenever we put some mass on the string become tight. टाइट का मतलब समझते हो? स्ट्रिंग में कोई मास वगैरह नहीं है तो स्ट्रिंग लूज है। व्हाट डू यू मीन बाय लूज? लूज माने नो टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। टाइट का मतलब है स्ट्रिंग में टेंशन है, ये सब नो। यस सर। टेंशन मतलब क्या होता है? टेंशन मतलब फोर्स। तो स्ट्रिंग में टेंशन है। अब देखो, जब भी ये सब टेंशन वगैरह लगता है तो बेसिकली ये दोनों तरफ से लगता है। मतलब अगर मैं पुली का बात करूं तो देखो, एक्चुअली ये दिखाएगा बुक में या कहीं पे देखोगे ऐसे करके दिखाता है। इसका मतलब क्या है? इस पुली के लिए ये टेंशन इधर लगेगा और इस ब्लॉक के लिए ये टेंशन इधर लगेगा। समझ में आया? ओके सर। मैंने बताया था एक्शन एंड रिएक्शन। Yes, sir. अगर ये ब्लॉक ऊपर जाएगा दैट मींस टेंशन इज ग्रेटर देन वेट, अगर ये नीचे जाएगा तो वेट इज ग्रेटर देन टेंशन। क्लियर? यस सर। Yes. और हमें पुली के बारे में नहीं कुछ निकालना है, बिकॉज पुली का मास पहले ही मैंने नेग्लिजिबल कर दिया है ना? बाद में इन चैप्टर 7 जहां पे हम लोगों को पुली का मास रहेगा तब हम लोग पुली के बारे में देखेंगे। ठीक है? ओके सर। और यहाँ पे अगर मुझे पुली का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा? ऐसे करके पुली का टेंशन दिखाऊंगा। ये सुन लो, ये सुन लो। समझे नहीं। अरे अगर पुली के बारे में बोलेगा, पुली में कितना फोर्स लग रहा है, तो ये पुली ड्रॉ करके पुली में फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है ना? ओह यस सर। दो जगह लग रहा है ना, यहाँ पे एक लग रहा है, यहाँ पे एक लग रहा है ना? यस सर।
तो पुली में कितना फोर्स लग रहा है 2T, यस और नो? यस सर। लेकिन अगर बोलेगा इस ब्लॉक में कितना फोर्स लग रहा है, तो ब्लॉक में फोर्स इधर लग रहा है T, इधर लग रहा है mg, बाकी ये जिधर जाए। समझ में आया? हाँ Yes, sir. सर। तो जब मुझे ब्लॉक के बारे में सोचना है तब पुली के बारे में नहीं सोचना है, और जब पुली के बारे में सोचना है तब ब्लॉक के बारे में नहीं सोचना। मतलब जिसके बारे में सोचना है उसको अलग से सोचना है, एक साथ सबको लेके नहीं सोचना है। क्लियर? बिकॉज दैट्स व्हाई वी सी Okay, दैट sir. फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब हर एक को अलग अलग से देखना है, सबको एक साथ नहीं। क्लियर? Yes, sir. यस सर। So if you understand that part, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, because ये सब अभी कोई काम का नहीं है, सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, सपोज दिस इज माय m1 मास, दिस इज माय m2 मास, तो हियर आई हैव m1g, हियर आई हैव m2g। नाउ लिसन दिस प्रॉपर्ली। देखो my m1 and m2 are not equal, although my tension are equal because it is connected with the same string। एक स्ट्रिंग होगा सो एक ही टाइटनेस होगा, मतलब हर जगह पे सेम टाइट होगा, मतलब सेम टेंशन लगेगा। ये सुन लो। Yes, sir. अगर अलग स्ट्रिंग होता तो अलग हो सकता था, अलग तुम्हारा टेंशन लग सकता है। क्लियर? Yes, sir. नाउ अब अगर दोनों का मास सेम है तो द सिस्टम इज बैलेंस, नो मूवमेंट। बट मानो इट इज गिवन कि m1 इज ग्रेटर देन m2, सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? m1 किधर जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे नीचे जाएगा? नीचे सर नीचे जाएगा। और m2 किधर जाएगा? ऊपर। ऊपर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, अगर, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, अगर ये यहाँ से, अगर ये एक डिस्टेंस नीचे आता है तो वो ये X यहाँ distance से ऊपर क्या जाएगा। करेगा, एक डिस्टेंस ऊपर जाएगा, है ना? Yes, sir. यस सर। हमें मालूम है s is ut plus half at square। if we suppose both are starting from initial velocity 0, so my that part is 0, यस सर। so I can say s is directly proportional to acceleration, क्योंकि टाइम तो सबके लिए एक ही है। Yes, sir. तो जो x एक्सीलरेशन, x डिस्टेंस नीचे जा रहा है, मतलब उसका एक्सीलरेशन a नीचे की तरफ है। डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। यस सर। और जो ऊपर की तरफ x जा रहा है, मतलब उसका एक्सीलरेशन भी ऊपर की तरफ है। ये सुन लो। यस सर। सो हम लोग जब रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग एक से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ये तुम्हें मन ही मन सोचना पड़ेगा। ठीक है? इतना कुछ लिखोगे तो फिर सॉल्व करने का ही टाइम नहीं मिलेगा। समझ में आया? Yes, sir. सो अब हम क्या करेंगे, हम अब मैं अभी बोल सकता हूं, एज m1 is greater than m2, this one is moving downward with an acceleration a, this one is moving upward with an acceleration a। yes or no? Yes, sir. So my first equation I can say, anyone, if I want to write the equation for m1, tell me the equation। m1 मतलब सिर्फ m1 के लिए सोचना है, ठीक है? m1 नीचे जा रहा है तब। T minus A. अब ना एक थप्पड़ खाएगा, ये मेरा m1 है, ये m1g है, ये t है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, मुझे m1 का चाहिए। Oh, sorry, sir. M1G minus T. m1g, Minus T हाँ, into M1 into A. और जरूरी नहीं है इसको बार बार ड्रॉ करना है, जितना बार ड्रॉ करेंगे मतलब कि उतना बार टाइम टेकिंग है। मैं इसको तो यहाँ पे देख के भी बोल सकता हूँ ना। क्लियरली देखो, m1g डाउनवर्ड, t अपवर्ड, a डाउनवर्ड, so m1g minus t equals to m, can we write? Yes, sir. यस। यहाँ
तो यहाँ पे मेरा t है, सो यहाँ का इसका इक्वेशन क्या होगा? एनीवन प्लीज टेल मी। Sir, m2g minus t equals to m2 T minus into M2. आप ना थप्पड़ T खाएगा, minus M2. पहले देखो किधर जा रहा है, उसके हिसाब से बोलो, T अनसन minus मत बोलो। M2G. हाँ Sir, बोलो। t T minus minus m2. M2G is equal to M2A. एनीवन टेल मी, क्या क्या लिखेंगे? वर्षाली बोलो, व्हाट वी कैन राइट हियर। वर्षाली बॉल, বল আবার মিউট করে দিলি কেন? শিওর না তো। আরে বল না, ভুলই বল না, কি আছে বল তো। t minus m2g equals to m2a। হ্যাঁ, তবে না বললে তোরা বুঝবি কি করে? আরে আমি হাল্লা করি, আমার হাল্লাকে ইগনোর কর, আমি হাল্লা করব, তোরা তাও বলবি। ওকে, বিকজ আদারওয়াইজ ইউ নেভার লার্ন। আমি ফার্স্টেড হব, আমি হাল্লা করব, তার মানে এই না যে তোরা বলা বন্ধ করে দিবি, বাট তোরা বলবি। রং হোক, যতক্ষণ না না বলবি ততক্ষণ কিন্তু ক্লিয়ার হবে না, ঠিক বলছিস কিনা। টি দেখলে আমি হরপরিতে আমি নিজেই ভুল করলাম। সো টি মাইনাস m2g equals to m2a। very good सक्षम, तुम ना थप्पड़ खाएगा। so is it okay everyone? Yes, sir. why I am writing t minus m2g? because this block is moving upward। बार बार बोल रहा है, जो जिधर जाएगा उधर का फोर्स को पहले लिखेगा। so this block is moving upward, so I am writing t first, then m2g and mass into acceleration। as this block is moving downward, so my this force is higher, so I am writing this minus this। now from this I can cancel this, so what we can write? m1 minus m2g equals to m1 plus m2a। so my acceleration is m1 minus m2 by m1 plus m2g। once I get the acceleration, I can easily find out the tension also। I can take it in any one equation, I can put it m2g plus m2 m1 minus m2 by m1 plus m2g, that is m1 m2g plus m2 square g plus m1 m2g minus m2 square g by m1 plus m2। এটা মনে রাখতে হবে। আমি তোকে বলেছি একবার মনে রাখতে হবে। this cancel, so what we have 2m1 m2 by m1 plus m2 g। लेकिन ये कभी भी याद मत रखो, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हें ये वाला स्पेशल प्रूफ देता है कि m1 and m2 they don't give you the mass, so they give you sometime m1 and m2 and they give you theoretical question। क्योंकि इन लोगों के पास honestly speaking ये चैप्टर में थ्योरी ज्यादा है नहीं, तो ये लोग क्या करते हैं ना, पर सीबीएसई बोर्ड कभी कभी जो हेडमास्टर होता है वो लोग ज्यादा जानता है। ज्यादातर हेडमास्टर स्कूल का या प्रिंसिपल जो होता है साला ह्यूमैनिटीज वाला। अब वो रूल रेगुलेशन झाड़ता है, बोलता है कि नहीं, सीबीएसई बोर्ड में 40% 50% थ्योरी देना पड़ेगा, आपने कैसे सब न्यूमेरिकल दे दिया है। तो टीचर भी बेचारा क्या करेगा, प्रिंसिपल আজকে के पास যেমন बात theory। सुनना पड़ेगा, नहीं तो उसका नौकरी चला जाएगा। तो वो क्या करता है कि थियोरेटिकल क्वेश्चंस दे देता है। So, এমন এমন কোশ্চেন দিয়েছে যেটা কোনো দেওয়া উচিত নেই। ইউনিট অর্ডার অফ ম্যাগনিটিউড, এটা কোনো কোশ্চেন। so that means कि on that basis they are give you this type of question। but to solve numerical, my suggestion is never ever remember this formula। ये याद रखोगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 100 नहीं 110% my guarantee, वारंटी भी नहीं, 110% गारंटी न्यूमेरिकल रॉन्ग ही होगा। तो इसीलिए इसको फॉलो नहीं करना है, सिर्फ मुझे फॉलो करना है इक्वेशन कैसे लिखेंगे। सो नाउ आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, ठीक है, यू ऑल ट्राई दिस क्वेश्चन।
next question is कितना ऊपर भाग। Next question is ये मेरा एक पुली है, ये मेरा एक सपोर्ट है, this is 1 point, this is 1 point, यहाँ पे एक ब्लॉक है, the mass of this one is 5 kg, and here you have one more block that is 4 kg. So the question is that find as minute acceleration of both the block, also find tension on the string. I give you some time, you please. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इस सर हम ब्लॉक अपना आंसर बोले पर नहीं, आंसर बाद में बोलो। 5G इधर लगेगा, 4G लगेगा कि नहीं बोलो। Yes. देखो ये हाँ। एक ही स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे टेंशन लगेगा T, यहाँ पे टेंशन लगेगा T, यहाँ पे टेंशन लगेगा T। क्या ये किया था पहले? हाँ सर। Lock and tackle. अच्छा अब देखो 5 kg ब्लॉक नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा? नीचे। देखो ठीक है, चलो गलती से अगर हम लोग नीचे भी ले ले कोई बात नहीं, पहले सुन लो। देखो 5 kg के लिए यहाँ पे 2 टेंशन है, 2 स्ट्रिंग है, 2 स्ट्रिंग टान रहा है, और यहाँ पे 4 kg के लिए 1 स्ट्रिंग टान रहा है। सो आई कैन से फॉर T we are using 4G and for 2T we are using 5G। yes or no? यस सर। अब बोलो कौन ज्यादा हायर हो गया? ये ज्यादा हायर हो गया ना। T के लिए 4G, 2T के लिए 5G, तो T के लिए इसमें क्या हो गया? 2.5G हो गया ना। Yes sir. बेटा पूछी नहीं। उस हिसाब से ये नीचे जाना चाहिए ना। सर हम 4 kg को नीचे और अरे 5 kg सुनो को तो ऊपर। पहले मैं जो बोल रहा हूँ मेरा बात सुनो, मेरा कंप्लीट के बाद तुम लोग अपना बात सुनो। पहले जो मैं बोल रहा हूँ सुनो। तो इस T के लिए 4G, यहाँ पे 2T के लिए 5G, T के लिए 2.5G, मतलब ये नीचे जाना चाहिए, ये ऊपर जाना चाहिए। ये सर नो? यस सर। हाँ या ना? यस सर। यस। लेकिन चलो गलती से जैसे तुम बोल रहे हो, तुम लोग का ही बात मान लेता है कि हम ये मान लेता है ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो देखेंगे क्या होता है। तो ऐसा अगर गलत करे, गलती से मिस्टेक कर दे, तो तब भी मेरा आंसर सही आएगा। हम कैसे करेंगे वो हम बाद में दिखा रहे हैं। पहला बात तो ये है। इससे भी इम्पोर्टेंट जो बात है यहाँ पे, इससे भी जो इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे देखो कितना स्ट्रिंग है, 2 स्ट्रिंग है। ये सुनो। यस सर। अगर ये पुली नीचे आएगा, मानो यहाँ पे आया ये पुली, तो ये इसको भी लेके आएगा, इसको भी लेके आएगा ना। हाँ सर। तो ये दोनों मिला के आएगा ना नीचे। हाँ सर। तो ये जितना नीचे आएगा ये इसका डबल ऊपर जाएगा कि नहीं बोलो? यस सर। क्यों जाएगा? क्योंकि देखो यहाँ पे फिक्स है, तो यहाँ पे फिक्स है, तो ये जब हम इसको ज्यादा नीचे हो गया, इतना दूर दोगे तो समझ में कम आएगा। मानो हमने यहाँ तक ले आया, उसको ये किया ना, मानो हमने यहाँ तक पुली को ले आया, तो मास मेरा नीचे आ जाएगा। तो ये मानो x नीचे आया, ये भी x नीचे आएगा, आएगा कि नहीं बोलो? यस। आएगा कि नहीं? अच्छा मानो ये मेरा ये जो लेंथ है, मानो ये टोटल जो स्ट्रिंग है, ये मेरा 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर एक स्ट्रिंग है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ रफ आइडिया। तो अगर हम यहाँ से बात करें, मानो ये मेरा है 30 सेंटीमीटर, आई एम जस्ट गिव यू रफली, ओके। ये भी मेरा है 30 सेंटीमीटर, तो ये मेरा कितना सेंटीमीटर है? अगर पूरा मेरा 40 सेंटीमीटर।
40 सेंटीमीटर, है ना। तो अगर मैंने इसको 5 सेंटीमीटर और नीचे ले आया तो यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर हो गया अभी? सर तब 75 हो गया टोटल, तो इस अरे तरफ तुम 75 क्यों, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है बोलो ना। ये सर, पहले 30 था, अभी 5 और 35 नीचे। ये 35, ये कितना आएगा? 35 ये भी हो जाएगा, 35 ये भी है, 35 ये भी है, कितना हो गया? 70 तो उधर 30। 70 हो गया। टोटल तो 100 मीटर ही है, तो यहाँ से ये कितना ऊपर जाएगा? ये डिस्टेंस मानो यहाँ पे आया तो ये कितना होगा? ये सर 10 सेंटीमीटर। ये 70 है, 35 है, ये 35 है, 35 35 70 हो गया। यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर होगा। और नहीं 30 सेंटीमीटर। 40 तो पहले 40 था, तो ये कितना ऊपर गया? 10 सेंटीमीटर ऊपर गया। इसका मतलब ये अगर 5 सेंटीमीटर नीचे आता है, ये कितना ऊपर जा रहा है? डबल 10 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तब अगर ये x जा रहा है तो ये 2x जाएगा, ये सर नो। यस सर। समझ में आया? हाँ सर। मैं इस सबको हटा रहा हूं। तुम लोग ये धीरे धीरे जितना प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली ये सब समझ में आ जाएगा। ये मेरा फिगर था, ये सर नो। हाँ सर। तो अब मैं बोल सकता हूं कि क्योंकि ये x जाएगा, मतलब ये a अगर जाएगा, ये 2x जाएगा, तो ये 2a जाएगा। ये सर नो अकॉर्डिंग टू यू? ये Yes, सर sir. नो? यस सर। एवरीवन इज इट ओके? यस सर। सो अब मुझे बोलो तुम्हारा हिसाब से ही, अगर ये 5G नीचे जा रहा है, देखो 5G नीचे जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा दो टेंशन है T and T2T, और ओवरऑल ये नीचे जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू यू 5G इज ग्रेटर देन 2T। व्हाट इज माय इक्वेशन? सर हम ऐसे वाला नहीं किए। अभी हम जो बोल रहा है बोलो ना, अभी क्या इक्वेशन लिखेगा? इसके हिसाब से एज द 5G is moving downward, two tensions are moving upward, acting upward, and the block moving with an acceleration a downward. What is your equation? सर 5G minus 2T is equals to 5 into M into 5 into 5 m into क्यों लिख रहा है फिर? जब मास 5 बोल रहे m क्यों लिख रहे हो? सर ए बोले। ये हाँ हम अर्चिष्मान को ही बोल रहे हैं, तुमको नहीं बोला है। 5 into what? A. Is it okay? Yes, sir. Now for this one block, what is your equation? Tell me. So T minus 4G T minus 4G is equal to 4 into A. 4 into equals to 2. 4 into 2A. अब सक्षम बोलो, तुम क्या बोलना चाह रहा था, बोलो। सर हम बोल रहे हैं कि हम उल्टा किए, हम मतलब 4G को नीचे और 5G को ऊपर वाला किए। हाँ वो तो हम बोला ही वो होगा, लेकिन अगर हम गलती करें तो क्या होगा? लेकिन सर गलती मेरे भी से जब, भी ये अरे गलती हो सुनो गया। तो, अगर हम गलती भी करें तो भी मेरा आंसर ऐसे करके गलती करे कि वो आंसर सही है। तो गलती करने के लिए पहले हमें ये सब सही लेना पड़ेगा। टेंशन टेंशन टेंशन, यहाँ पे दो स्ट्रिंग है, अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, अगर ये एक नीचे आएगा ये डबल ऊपर जाएगा, अगर ये ए जाएगा ये 2a जाएगा। अगर क्योंकि हम लोग ये माना है ऊपर जा रहा है, so I'm supposing T is greater than 4G, so T minus 4G is 4 into A, 5G is moving downward, 5G minus 2T is 5 into A। ठीक है? Yes or no? यस सर।
लेकिन हम लोग यहाँ पे एक गलती किया है कि ये नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा। सो कोई बात नहीं, हमें जो एक्सीलरेशन मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव मतलब जो नीचे जा रहा है वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर जा रहा है वो नीचे जाएगा। ये सर नो? यस सर। तो वो गलती कोई बात नहीं। अब बोलो सक्षम, तुमने क्या लिखा था? क्या लिखा था? t minus 4g is 4 into 2a। सर नहीं, हम वो टेंशन मतलब 2a लेना भूल गए, वो हाँ, तो नहीं। इसीलिए तो मैं इतना कुछ सिखाया, इतना कुछ बताया कि हाँ तुम लोगों ने सर। जो गलती किया है उसको सुधारने के लिए तो इतना कुछ बोला। तो फिर तुमने लिखा है, क्या जरूरत है? तुमने गलत लिखा है, ठीक है? ऐसे करके Yes. लिखना पड़ेगा। ओके, यस सर। तो अब देखो, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए वी कैन मल्टीप्लाई बाय 2। सो 2t minus 8g, 8 at 16, 16a. So now we can cancel this 2t, 5g minus 8g, 3g, 16 plus 5 is 21a. So a is minus t by 21g, that is minus g by 7. What do you mean by negative? You can write minus 10 by 7 also. What do you mean by negative? Our supposition is wrong. उल्टा होगा, मतलब acceleration of 5 kg ये नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर जाएगा। नेगेटिव मतलब रिवर्स। सो एक्सीलरेशन ऑफ 5 kg 10 by 7 meter per second square upward। ओके, एंड एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg देखो डबल है 2a, तो 10 2a मतलब क्या हो गया? 20 by 7। ये सुन लो। यस सर। ये जो एक्सीलरेशन आया मेरा, ये जो एक्सीलरेशन आया इसका डबल, तो 20 by 7 m मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम लोगों ने डायरेक्शन डिसाइड हो गया, नेगेटिव आया तो ये ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे जाएगा। क्लियर हुआ? इज इट ओके? Yes. यस सर। एवरीवन सेटिस्फाइड? यस सर। अच्छा, तो ऐसा भी कुछ क्वेश्चंस है, इफ आई मार्क देम। सो दिस तरह का क्वेश्चन एक तो मैंने करा दिया, और ये मेरा शीट का क्वेश्चन नंबर 18। ओके, दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम द शीट। अब इसका रिलेटेड यू कैन ट्राई सम क्वेश्चन, यहाँ पे है। अच्छा, बुक में मिल जाएगा, बुक में चेक कर लेना, पुली का सिंपल पुली वाला क्वेश्चन। आई एम नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके सर। नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये मेरा एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक ब्लॉक है। मास ऑफ द ब्लॉक इज 2 kg। टेबल में कोई फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी फ्रिक्शन नहीं पढ़ा है। यहाँ पे एक पुली है और यहाँ से एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक का मास है 5 kg। Now the question is that find the acceleration of both the block. Find the acceleration of both the blocks and tension on the string. जल्दी जल्दी करो, करके मुझे इक्वेशन बताओ। वाला बता ही दीजिए ना। हाँ हाँ, सभी वाला मैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। हाँ, तो देखो यहाँ पे 5g acting downward, tension is here, here is the 2g, here is the normal reaction, here is the tension। ये सुन लो। सर नॉर्मल रिएक्शन को R से डिपिक्ट करते हैं। R या N, ठीक है सर। ठीक है, R से करो, यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जहां पे रेडियस इन्वॉल्व होगा वहां पे N से करना। तो नाउ टेल मी, इट्स अ सिंगल स्ट्रिंग। यस सर। तो ये जो ब्लॉक है नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा? सर नीचे जाएगा। तो नीचे जाएगा। और ये किधर जाएगा? इधर जाएगा ना पीछे जाएगा? सर ये भी आगे आएगा।
आगे मतलब राइट साइड, यस सर। तो राइट साइड acceleration है, acceleration है. Now anyone please tell me Snehadeep, please tell me the equation of that 5 kg block. Snehadeep, please tell me the equation of 5 kg block. Snehadeep, चलो राज बोलो 5 kg ब्लॉक का इक्वेशन क्या लिखेंगे? हाँ 5g minus t equals to 5a. वेरी गुड. ट्राई जब तक नहीं करोगे कोई कुछ नहीं कर सकता, स्वयं भगवान भी कुछ नहीं कर सकता. सौम्यदीप, टेल मी द इक्वेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक. Sir, wait. सर हम बोले ना सौम्यदीप बोलो. थोड़ा जल्दी बोलो. अरे इतना हिचकिचाता क्यों है? जो लग रहा है बोलो ना. हम तो है ठीक करने के लिए, अभी तो तुम लोग सीख रहा है. बोलो जल्दी से. इतना क्या शर्म, इतना क्या दूसरा कोई सोचेगा? फास्ट फास्ट, इतना टाइम नहीं है, फास्ट बोलो. सौम्यदीप बोलो. अरे गलती भी बोलो, बोलो ना. गलती करोगे तभी सीखोगे, बोलो. सौम्यदीप बोलो. सर नहीं आ रहा. अरे व्हाट एवर, रॉन्ग आंसर ही बोलो ना. हम तुमको कहाँ बोले कि राइट आंसर बोलो. जस्ट टेल मी. इतना शर्माने से तो क्या बोलेंगे. एनीवन अदर टेल मी. अरे गलती भी बोलो, बोलो तो कुछ तो बोलो. कौन बोल रहा था? बोलेगा जल्दी बोलो. t minus 2g equals to 2a. कौन बोल रहा है? राज. सर राज बोला शायद. फिर से बोलो, फिर से बोलो. t minus 2g equals to 2a. देखो जब तक गलती नहीं करोगे तब तक सीख भी नहीं पाओगे. तुम लोग जो है ना समझता ही नहीं है. हम तुम लोगों को कोई मजाक उड़ाने के लिए नहीं पूछते. तुम लोगों का कंसंट्रेशन बढ़े इसलिए बोलते हैं. एक चीज ध्यान करो. अभी तक हम लोग जो भी वेट 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 सक्षम वेट, मुझे यही चाहिए था कि तुम लोग ये बोलो, तभी मैं वो सिखा सकता था ना. देखो अभी तक हम लोग जो भी कर रहे थे, देखो एक लाइन पे ले रहे हैं. ये समझो. हम लोग जब भी लेंगे एक लाइन पे ले रहे थे, ये है ना. हाँ सर. लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे 2 अलग अलग लाइन है. हाँ सर. तो हम लोगों को जब भी इस तरह का इक्वेशन लिखाएंगे लाइन वाइज लिखेंगे. तो लाइन के हिसाब से मेरा क्या हो रहा है? नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंसिंग 2g. ये सब नो. हाँ सर. तो t को तुमने जो t का ऑपोजिट में -2g लगाया, क्या t का ऑपोजिट में इधर कोई 2g है? नहीं सर. तो हम इसको नहीं लिख सकता है. ये सब नो. यस सर. समझ में आया? हम इसको हाँ, सर. तभी लिखेंगे जब एक लाइन पे होगा. देखो ये और ये अलग अलग लाइन है. ये दोनों को एक लाइन में कभी मत लिखना. गलती से भी ये सब मिस्टेक मत करना. और इसी के लिए मैं इतना एक एक क्वेश्चन पे इतना टाइम दे रहा हूँ. नहीं तो मेरे को क्या, मैं तो एक लाइन में सॉल्व कर दूंगा. लेकिन तुम लोगों को ये तुम लोगों को रियलाइज करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है. हमें लाइन देखना है. ये और ये एक लाइन पे है, ले सकते हैं. ये और ये है, कभी भी दिमाग में नहीं आएगा दिस माइनस दिस. इसके लिए मैं इसको देखूंगा. ये दोनों लिख सकता हूँ. ये और ये कभी नहीं जा सकता हूँ. इसका ऑपोजिट में अगर फ्रिक्शन होता तब मैं लिखता, बिकॉज दे आर ऑपोजिट. अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes. तुम यहाँ पे मैक्सिमम एक चीज लिख सकते हो, क्योंकि अभी तुम लोग सीख रहे हो कि r is 2g. ये तुम लिख सकते हो ताकि तुम्हें समझ में आए. अच्छा ये वाला इसको बैलेंस कर दिया, ये तुम लिख सकते हो तुम्हारा मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए.
अदरवाइज तुम जहां थोड़ा सीख जाओगे तब ये सब लिखने का कोई जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट लिखो टी ड्यू टू टेंशन टी दैट ब्लॉक इज मूविंग फॉरवर्ड, so T is equals to 2 into A. Okay, everyone? सर समझे Yes, नहीं। sir. अरे ये ब्लॉक इधर क्यों जा रहा है? इस टेंशन के लिए कितना एक्सीलरेशन से? A एक्सीलरेशन से, तो हाँ, सर। ये ब्लॉक को T टेंशन ले जा रहा है, तो T टेंशन इज मास इनटू एक्सीलरेशन, क्योंकि इसका हाँ। ऑपोजिट में कोई फोर्स नहीं है अभी भी। ये ठीक है सब सर। यस सर। समझ में आया ना? Yes. यस सर। So now we can put this value. So 5G 5G equals minus to 7. 2A equals to 5A, 5G equals to 7A, A equals to 50 by 7 meter per second square. Once we find out the acceleration, now we can say acceleration of 5 kg, 50 by 7 meter per second square downward, acceleration of 2 kg, 50 by 7 meter per second square forward. Yes or no? ये तो इधर ही जा रहा है ना? Yes or no? यस सर। And tension देखो 2 into A, मतलब 100 by 7 Newton. Yes or no? On the string. यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान से समझो। हाँ, मेरे पास अगर इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, अगर मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है और सपोज थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, और इसके ऊपर अगर मैं एक ब्लॉक को रखा हूं, ठीक है, सो ऑब्वियसली, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, ऑब्वियसली my mg is acting downward. Yes or no? Tell me first. यस सर। So देखो, if this angle is theta, so I can say my this angle is also theta. Can we say that? हाँ सर। So what about this angle? Ninety minus theta. 90 minus theta. 90 minus theta. So what about this angle? थीटा। Theta. क्यों? क्योंकि ये भी 90 डिग्री है मेरा, so 90 डिग्री minus 90 degree minus 90 degree minus theta, that is theta. Everyone satisfied? Yes, sir. Everyone, if you have any problem, you can tell me. Is it okay, everyone? Okay, sir. If it is okay, so I'm removing all this part because now I am not required this. I just show you, I just want this to show you what going on. And now I can again draw this one. This is my block. So if mg is acting downward, now I can say this angle is theta. Yes, sir. I can say. So if I can say this angle is theta, if I can say this angle is theta, then I can say along the basis mg cos theta. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. And this one is perpendicular with the base. MG sin. This is my normal. ये straight होगा, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ये एकदम straight होगा,
एकदम स्ट्रेट, ये नॉर्मल रिएक्शन। इधर में देखो, दिस इज mg along the base cos, बाकी जो बच गया 90 minus theta, that is the perpendicular with the base. So perpendicular with the base is mg sin theta. Is it clear? Yes, sir. So along the base cos, perpendicular with the base, you understand that inclined plane? Yes, sir. Yes. Yes. That is- If you understand that part, then I'm again giving you a question for the inclined plane. This angle is 30 degree. And here I put a block, फिर टेढ़ा हो जाता है। अभी भी ये ना मेरा हाथ पे बैठा नहीं है। सर आप तो ये आज ही से यूज कर रहे हो ना? नहीं, लेकिन ये तो टोटल चीज तो यूज कर ही रहा है ना। हम्म। लेकिन ये वाला ज्यादा अच्छा लगा मुझे लास्ट वाला से ना। सर फीचर्स तो सेम ही है मुझे लगता है। हाँ हाँ सर। नहीं, इसमें तुम स्टोर তো करके এটাতে रख सकते हो पहला वाला। আগের গুলো দেখা যায়, ওটাতে তো মিটাই দিতে হবে। हाँ, उसको हर पेज को अलग से सेव करो। हाँ सर इसमें हाँ, सेव तुम लोगों के साथ गप मारते मारते मैं गलती कर दिया। ये है मेरा 5 kg, ये है मेरा 2 kg। क्वेश्चन इज सेम क्वेश्चन, फाइंड acceleration of both the block and tension on the string. Yes or no? यस सर। So देखो again, first of all I can write here 5g, yes or no? Here the tension is T, here the tension is T. This one is fixed, so I don't need this one because this one is not moving. This is the tension T. Only the extra is due to inclined plane, force acting downward, yes or no? Yes. कितना होगा वैल्यू? बताओ वैल्यू कितना होगा? mg cos 30 degree. mg Cos ध्यान 30 से देख के degree. बोलो, mg sin 30 degree. बिना देख के बोलता है तुम लोग ना। कितना mg? sin 30. तो यहाँ पे लिखेगा m क्यों लिखेगा? क्या लिखेगा? Mass 2. 2g sin 30 degree. Yes or no? Yes. Here you have two string. So if that block is moving downward with a acceleration, with how much acceleration it will be moving upward? A or 2a? Sir, A. एखाने ये तो फिक्स है, तो ये भी नीचे जाएगा, ये भी नीचे जाएगा, ये दोनों को ये अकेला ऊपर जाके कॉम्पेंसेट करेगा ना। इधर तो ये फिक्स है, तो ये नीचे जाएगा, ये भी तो नीचे जाएगा ना, तो ये ऊपर आएगा ना। कितना ऊपर जाएगा ये? अरे यहाँ पे दो स्ट्रिंग है, दोनों नीचे जा रहा है। 2A सर. ये फिक्स है, तो ये मानो ये x गया, दोनों तरफ से x जाएगा ना, इधर से भी x जाएगा, इधर से भी x जाएगा ना।
और ये इसको डबल कंपनसेट करेगा ना. Yes, sir. अंडरस्टैंड? हाँ sir. So what I can write here, 2a, yes or no? Yes or no? Yes, sir. Somadev, then tell me what is the equation for 5 kg block? Somadev, Yes, sir. what is the equation for 5 kg block? This one, 5 kg block. Ball. So বলছি 5 Ashmit, ball. so 5g minus t equals to 5 into মাইনাস a. টি কেন? এখানে কটা টেনশন দেখতে পাচ্ছিস? So দুটো তাহলে টি কি করে হচ্ছে? আবার বল। বল। আরে 5G তো ঠিকই বলেছিলি, টি যখন বললে আমি বললাম দুটো টেনশন আছে, তো কি হবে বল? 2t. তো ইকুয়েশনটা বল। 5t minus 2t is equal to 5. 5G, দেখ ভাই আমি একটা খুব সিম্পল কথা বলি, খারাপ পাস ভালো পা, যতক্ষণ না চেষ্টা না করবি না, আমি বললাম তো আমি কেন, মানে ভারতবর্ষ পৃথিবীর বেস্ট টিচার পড়ালেও কেউ কিছু করতে পারবে না। নিজের থেকে যতক্ষণ চেষ্টা করবি না, নো ওয়ান ক্যান হেল্প ইউ। একটু চেষ্টা নিজেকেই করতেই হবে বাবু। বললাম না আমি কেন, ভারতবর্ষের কেউ যদি পড়ায়, আইনস্টাইন এসে পড়ালেও কেউ কিছু করতে পারবে না। 5G minus 2t 5 into a. Now Pritish, tell me what tell me the equation for 2 kg block. এটার ইকুয়েশন বল। 2g minus t. আবার বল। 2g minus t equals to 2. কি কোথা থেকে দেখছিস তুই? 2g sin theta. এটা উপরে যাচ্ছে না নিচে যাচ্ছে? এটা উপরে যাচ্ছে। কার ফোর্স বেশি, টি বেশি না 2g sin থিটা বেশি? ও টি বেশি। তাহলে তুই 2g আগে কি করে বললি? আচ্ছা সরি, গাজা খেয়ে বলছিস? বল তাড়াতাড়ি বল, আবার বল। t minus 2g sin theta equals to, কেন, অ্যাঙ্গেল তো দেওয়া আছে। আচ্ছা বল। এক মিনিট। চিন্তা কর তোরা কি পরীক্ষা দিবি, তাড়াতাড়ি বল। এত ঘাবড়ে যাস না তোরা, জিজ্ঞেস করলেই সবাই ঘাবড়ে যায়। বর্ষালি তাড়াতাড়ি বল, বর্ষালি বল। t minus 2g sin theta 30 degree equals to 2a. আবার ভুল করলি, এখানে এ কেন হবে? এখানে কত আছে আচ্ছা, বল, আবার বল, বল বর্ষালি বল। আমি আচ্ছা t minus 2g sin 30 degree equals to 4a. 4a কেন বলছিস? 4a বললে পরে এই জন্যই তো মিস্টেক করি। নিয়ম হচ্ছে মাস ইন্টু অ্যাসিলারেশন, 2 into 2a বল, তাহলে কি বলতো প্যাটার্নটা মনে থাকবে। 4a লিখবি তখন বলবি 4 কোথা থেকে পেলাম। ক্লিয়ার? হ্যাঁ, Now we can multiply this by 2. So what we have, 2t minus 4g sin 30 half equals to 8a. So we can cancel this 2t 2t. So what we have, 5g minus 2g equals to 8 5 13a. So 3g equals to 13a. A equals to 30 by 13 meter per second square. Everyone, is it okay? Yes sir. So acceleration of 5 kg. বাবু দেখ তোরা কিছু খারাপ পাস না, তোরা যতক্ষণ না অ্যাগ্রেসিভ হয়ে বলবি না, না ভুল হোক ঠিক হোক বলতে হবে বাবু।
আর দেখে দেখে মানে এই না যে চোখ বন্ধ করে বলতে বলছি, দেখে দেখে বল যে এটার মানে কি, আচ্ছা এটা নিচে যাচ্ছে, কি আছে 5G is downward, 2T you have, and the block is moving downward. Acha, that means 5G is greater than 2T. So what is my equation? 5G minus 2T, 5 into a. Here, first of all, as it is an inclined plane, so 2 kg is there. So downward force is, extra downward force is there, 2G sin theta. In which direction the block is moving? Upward. So what is my equation? Obviously, T is greater, why the block is moving upward. So T minus this downward force. Why we are taking minus? Because they are opposite. এরকম ছোট 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 কোশ্চেন করবি, দেখবি তবে বুঝতে পারবি। T minus 2G sin theta 2 into 2a। যখনই जब भी मन को बोलोगे ना, मन तुमको जो रिप्लाई देगा ना, देखना ये दिमाग is like a computer. If you call something ना, then it will give you, तुम्हारा वो जैसे कंप्यूटर में होता है ना, we search कि ये कहाँ है। So when you say this ना, they automatically give you the answer. T 2G sin theta कहाँ पे है, दिमाग बोलेगा ये देखो नीचे की तरफ है। So T minus 2G sin theta 2 into 2a। And that's why ये जो बोलता है ना, बोल के, हम लोगों का जब दादाजी लोग या हम लोग का पिताजी लोग, देखना तुम लोग पूछना, वो लोग जब पढ़ाई लिखाई किया है तो वो लोग बोल के किया है। ये जो बोलने से क्या होता है ना, इट्स अ वैदिक कल्चर, कि जब तुम कुछ बोलते हो तो तुम्हारा दिमाग में वो जल्दी जाता है। क्यों? क्योंकि वो सुन के जाता है, जिसको श्रुति बोला जाता है, तो उससे ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है। चुपचाप मन ही मन बोलने से अच्छा है बोल के करो। जितना बोल के करोगे उतना ज्यादा ही करोगे। बच्चा लोग जल्दी सीखता है। क्यों सीखता है? क्योंकि बच्चा लोग वो बोल के जल्दी बोलता है, गलती करता है लेकिन फिर भी बोलता है, इसीलिए वो लोग ज्यादा सीखता है। एक नया लैंग्वेज, आज तुम चाइनीज सीखने जाओ, तुम लोग अभी भी सीख पाएगा, हम लोग तो सीख ही नहीं पाएगा। लेकिन यही अगर एक 9-10 का बच्चा को तुम चाइनीज सिखाओ, देखो तुमसे भी आगे सीख लेगा। क्यों? क्योंकि उसमें वो गलती करेगा लेकिन वो ट्राई करेगा, उसका ट्राई करने का, कैचअप करने का ये जल्दी है। तो ये जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा है। So when you get the acceleration of 5, so what is the acceleration of 5 kg? I show you acceleration of 2 kg double. What do you mean by double? 60 60 by 30 meter per second square. And as it is moving upward, you can write it up. This one means upward. Yes or no? And if you want to find out the tension also, you can find out tension. This is 2G. So এখানে কত হয়ে যাচ্ছে? 2G, 2T is, আচ্ছা, T equals to 2G sin 30 half plus 4A, that is 10 plus 4 into 30 by 13, that is 130 plus 120 by 13, that is 250 by 13 Newton. In examination, they don't ask all of this. Either they ask you acceleration of 5 kg, or they ask you acceleration of 2 kg, or they ask you what is the tension on the string. This type of question they can ask you. Even they can ask you what is the force on that clamp. So देखो, if they ask you what is the force on that clamp, there is a tension T, there is a tension T, and this is the clamp. So इस clamp में कितना जाएगा? ये दोनों का resultant जाएगा। So ये भी T, and these are the vector. So we know from the vector root under T square plus root under T square, that is root 2T. So root 2 into 250 by 13 Newton is your tension on that clamp. Understand? Yes, sir. So this type of different question examiner can ask you. So I am stopping